Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic, business, and stock market news of the day. To navigate you through today's show, your anchors Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। अगले आधे घंटे में हम शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। नमस्कार पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुबोध जी। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत। New Year cheer grips Indian stock markets. Sensex and Nifty scale to new closing peaks. Among major Asian indices, South Korea's Kospi ends at all-time high closing level. And in Indian bullion market, gold and silver prices edge higher. भारतीय शेयर बाजार में नए साल की खुशियां बरकरार। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर बंद हुए। एशिया के प्रमुख सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ और देश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी में नई चमक। And Subodh, before we go any further in the program, let's once again remind our listeners the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. जी, और देखें आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा है। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अब तक के सबसे ऊंचे क्लोजिंग लेवल पर बंद हुए। सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर लिवाली के कारण सूचकांक नई ऊंचाई पर पहुंच पाए। आज के कारोबार की शुरुआत में ही दोनों थोड़ी बढ़त के साथ खुले और जल्द ही उन्होंने रफ्तार पकड़ ली, जो सत्र की समाप्ति तक बनी रही। सेंसेक्स 573 अंक यानी लगभग 0.7% बढ़कर 85,762 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 182 अंक यानी 0.7% बढ़कर 26,329 पर बंद हुआ। इससे पहले निफ्टी अंतर्दिवसीय कारोबार में अपने नए रिकॉर्ड स्तर 26,340 तक पहुंच गया था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स में 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.8% की बढ़ोतरी हुई। Yes, Subodh, indeed, we are talking about an all-time high closing levels today. So indeed, Puneet, lot of food for discussion. We'll come back to you right away. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, settled at their all-time high closing levels today, led by broad-based buying across sectors. The indices started the day marginally higher and soon gained momentum. They later extended their upward trajectory throughout the session. The Sensex jumped 573 points, nearly 0.7%, to close at 85,762, while the Nifty climbed 182 points or 0.7% to settle at 26,329. Earlier, Nifty scaled to its fresh lifetime peak of 26,340 in the intraday trade. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also edged up. The mid-cap index gained nearly 1% and the small-cap index rose 0.8%. और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है। 30 में से 25 कंपनियां, सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुई। सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों के शेयर्स में पहले नंबर पर है एनटीपीसी, जिसके शेयर लगभग 4.7% बढ़कर बंद हुए। ट्रेंट लगभग 2.6% और बजाज फाइनेंस में 1.8% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा घाटे में रही कंपनियों के शेयर्स में आईटीसी पहले नंबर पर है, उसके शेयर 3.8% नीचे आ गए। कोटक बैंक में 1% से अधिक और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट रही। Across sectoral indices, bank shares attracted strong buying interest.
Nifty Bank Index hit fresh record high of 60,204 during the session. Among the sectoral indices at the BSE, 21 out of 22 sectors edged higher, except FMCG, which fell over 1.1%. In the gainers, utilities climbed 2.7%, power gained almost 2.3%, and energy rose nearly 1.6%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,772 advanced, 1,449 companies declined, and 150 remained unchanged. Puneet, what could be the reason behind this all-time high closing levels today? What's your view on this? So, Sarabjit, I think the markets are really celebrating the conclusion of a very good year in terms of economic growth, in terms of policy initiatives which kind of emerged during the year. And I think more than that, they're looking forward to a very good outcome in the next 12 months. So clearly, this is to some extent acknowledgement of what has happened last year. And it is, in some sense, I would say, it is optimism of what is ahead of us in the coming 12 months. लेकिन पुनीत, ये ऑप्टिमिज्म की बात आप कर रहे हैं, ये कुछ समय पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक आप ही के साथ बैठकर हम चर्चा कर रहे थे कि अगले 6 महीनों में कुछ आशंकाएं दिख रही हैं। अगले 6 महीनों में का अगर हम आउटलुक पर गौर करें तो उन सब आशंकाओं को झुठलाकर ये शुरुआत बड़ी अच्छी दिख रही है। कितना सस्टेन कर पाएगी, कुछ अंदाजा लगाएं? देखिए सुबोध, ये काफी चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के सामने भी, विश्व स्तर पूरी दुनिया में। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट अगर मैं डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करूं तो शायद कम चैलेंजेस हैं, पर ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस काफी हैं। और साथ में ही ये भी मैं कहूंगा कि देखिए काफी लंबा ये दौर तेजी का रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि अगर निफ्टी की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो 10 वर्षों से लगातार ये 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ राइज था। तो नॉर्मली जब बहुत अच्छा ऐसा रहता है रन, तो थोड़ा सा जिंक्स हो जाता है, थोड़ा फिंगर्स क्रॉस करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा कॉशियस हम रहना चाहिए ज़रूर। अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन आई थिंक कॉशन वुड बी क्वाइट एडवाइजेबल ऑल्सो. Puneet, we saw that the Nifty Bank Index hit fresh record high. What is the reason behind this surge? Is it a strong credit demand, positive quarterly updates from banks, or falling bad loan ratios? What do you have to say? So, Sarabjit, interestingly, in fact, in this latest run for Nifty, when we've seen Nifty surge in the last few weeks, Bank Nifty or banking stocks have been at the forefront, and we've seen outperformance by banking and financial services sector. Right. Driven by 2-3 things. One, RBI recently came out with a report saying that now the NPAs, the bad loans, are at historic lows for banking sector. So that's very good news. We recently saw some pickup in credit demand from MFIs, the microfinance institutions also, so which was a very weak segment of the economy. So their consumption probably is rising, and now the credit demand is picked up. And today morning I read that even industrial credit demand has gone up. So clearly I think the news is becoming better going forward. And always whenever economy starts picking up, then we see the banking sector leads in the front, because you need money to grow, the credit demand starts going up. So I think that is, again, when we spoke about optimism, we will only know what happens in the next 12 months. But right now the mood is optimistic, and I think banking sector is reflecting that through the numbers. हाँ, और जिस तरह से जो बाजार की चाल है, जैसे आज मतलब ऐसा भी नहीं था जैसे कल दिखा कि तो उतार चढ़ाव है, या पहले दिसंबर में हम अक्सर देखते थे ट्रेड में दिन भर में जो इंट्राडे काफी उतार चढ़ाव दिखाई देता था। आज तो बिल्कुल लगा जैसे बहुत मजबूती के साथ खुला है और बिल्कुल धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। हाँ, आज के बाजार की एक और खास बात रही कि ना सिर्फ निफ्टी ने ने एक नया ऊंचाई, नया स्तर, न्यू रिकॉर्ड बनाया, और ये ब्रॉड बेस्ड मार्केट थी। हमने बैंक निफ्टी में देखा नया रिकॉर्ड बना, हमने मिड कैप निफ्टी, जो निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है 100 शेयर्स का, वहां भी नया रिकॉर्ड बना। तो नॉर्मली ये, हालांकि स्मॉल कैप में भी थोड़ा उतना तेजी नहीं आई है, वहां पर थोड़ा कट है, थोड़ा लोगों को भी सेटबैक है वहां पर। लेकिन आप देखें तो ब्रॉड बेस्ड रैली और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सरबजीत ने बताई, 2000 से ज्यादा, करीब करीब 3000 कंपनियों में तेजी थी आज, और सिर्फ 1000 कंपनियों में थोड़ी कमी थी। तो ये जो ब्रॉड बेस्ड रैली है, ये काफी एक अच्छा संकेत रहता है मार्केट स्ट्रेंथ का।
तो लगता है मतलब छुट्टियों का अभी अगर देखें हम तो पश्चिमी बाजार में, पश्चिमी जगत में तो अभी छुट्टियों का सीजन चल ही रहा है, अब शुरू होगा, खत्म होने वाला है अब। तो जो कहते हैं हम कि दिसंबर में चलो जी उन्होंने पैसे निकाल लिए थे, अब क्या वापस आने लगेंगे? अब देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आपने जो पहले सवाल पूछा था कि क्या ये ट्रेंड सस्टेन करेगा, इसका जवाब हमें नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो छुट्टी पर हैं और वो मंडे से हम देखेंगे कि वो वापस काम पर आना शुरू करेंगे। हालांकि जनवरी का रिकॉर्ड जो है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। यदि हम पिछले 10 वर्षों को देखें तो करीब करीब हर वर्ष जनवरी के महीने में FIIs की काफ़ी हम देखते हैं सेलिंग रहती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज मार्केट का रहेगा अगले 2 सप्ताह में, और अगर FIIs की बाइंग आती है इस दौरान तो मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा चीज़ होगी। और नॉर्मली हम देखते हैं कि इस दौरान FII की सेलिंग रहती है, तो ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। वी विल गेट एन आंसर नेक्स्ट 2 वीक्स। बस उम्मीद करें कि बाजार इस जनवरी की ठंड से बचा रहे। जी, अगली खबर देखें हम, रुपए पे नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरकर 90 रुपये 19 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.46 पर था। और इसके साथ एशियाई बाजार का हाल, हालांकि आज जापान और चीन के बाजार बंद थे, 2 प्रमुख जो हैं, लेकिन इसके अलावा देखें तो बाकी भी नए साल की छुट्टियों के बाद एशियन मार्केट्स में सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है। और प्रमुख बाजारों में जो देखें हम तो हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 2.8% बढ़ गया, साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 2.3% ऊपर अपनी नई क्लोजिंग हाई पे पहुंचा हुआ है 4,310 पर। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.2% बढ़ गया है। और जैसा पहले बताया था मैंने कि जापान और चीन के बाजार बंद रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी आज शुरुआती कारोबार में बढ़त दिखाई दे रही है। लंदन का फुटसी 0.5% ऊपर चल रहा है। जर्मनी के डैक्स और फ्रांस के कैक में भी शुरुआती कारोबार में बढ़त का रुख नजर आ रहा है। पुनीत, ये पूरा सिर्फ भारत की बात हमने अभी की, भारत तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली। अगर हम देखें तो बाकी भी जहां जहां कारोबार आज हुआ है काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि इसके साथ ये था कि चलो अभी कल तो US मार्केट बंद था, लेकिन बाकी जो आज जहां खुला है, जहां दिख रहा है, वहां काफ़ी बढ़िया है। हालांकि जैसे चीन के बाजार बंद थे, लेकिन जो हांगकांग का बाजार है, हैंगसेंग है, हाँ, उसको हम मानते हैं कि उसका प्रॉक्सी है चीन का, तो वहां पर 2% से ज़्यादा हमने तेजी देखी। तो क्लियरली अभी जो पॉजिटिव एक मूड है ग्लोबल मार्केट्स का, वो एक मुझे लगता है एक बड़ा कारण है। और आने वाले समय में मालूम चलेगा हमें कि उसका क्या वो सस्टेन करेगा। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव लगती है। उसका देखिए मुख्य कारण ये भी है कि जो अमेरिका में भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, इजी मनी पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहे हैं। और ऐसा मार्केट्स का अनुमान है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर बना के रखेंगे US फेडरल रिजर्व पर कि वो और इंटरेस्ट रेट कम करे। हालांकि जो प्रेजेंट लीडरशिप है फेड की, वो इस शायद हक में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो चेंज होने वाले हैं, जेरोम पावेल इज गोइंग टू बी चेंज्ड एज फेड चेयरमैन, तो नए चेयरमैन आएंगे और डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। तो अभी जो आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मूड मार्केट्स में डेफिनेटली है। जी। All right, listeners, after that peep into the Asian and European markets, let us now dive into India's inflation trends for 2025. We bring you a report on movements in the Consumer Price Index and the Wholesale Price Index over the last year. In 2025, India experienced a largely benign inflation environment. CPI was at 4.26% in January and steadily softened over the months. By June, inflation declined to 2.1%. This was well within the Reserve Bank of India's medium-term target of 4%, with a tolerance band of plus or minus 2%. The downward trend continued into the second half of the year, with headline CPI reaching historic lows of around 0.25% in October. In November, inflation edged up slightly to 0.71%, still reflecting broad-based price stability. The RBI also revised the CPI inflation forecast for financial year 2025-26 downward from 2.6% to 2%. Against this backdrop, the RBI cut the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% in December.
it maintained a neutral stance to balance growth and inflation. Wholesale inflation also mirrored this moderation. WPI inflation eased from 2.31% in January to a provisional minus 0.32% in November 2025, underscoring overall softening price pressures across the economy. Ayushi Singh for Market Mantra. ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट आयुषी की हमने अभी सुनी पुनीत. इस पर जो अगर हम देखें, इस पर इन्फ्लेशन के आंकड़े भी बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं हमें. कि अगर जनवरी में देखें सीपीआई 4.26 था, जून में 2.1 और उसके बाद तो और धड़धड़ाता हुआ नीचे गिरा है. और अगर हम देखें तो आरबीआई का जो फोरकास्ट है सीपीआई इन्फ्लेशन का 2% पर है, जो पहले 2.5 से ज़्यादा 2.6 था. और रेपो रेट कट भी हुआ है और मुझे लगता है कि अभी मतलब इसमें भी कुछ अभी और संभावना बाकी है. उम्मीद तो अभी चल रही है. और डब्ल्यूपीआई का भी जनवरी में 2.31 था और नवंबर में 0.32 प्रोविजनल जो भी था. ये आंकड़े बड़े कमाल के आए हैं. बिल्कुल. देखिए, किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए ये बहुत ही एक गोल होता है, ड्रीम रन होता है कि आप इंटरेस्ट रेट भी कम करें और आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे. नॉर्मली हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पाते. इंटरेस्ट रेट कम करने से कंज्यूमर को फायदा होता है, लेकिन डर यह होता है कि इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा. तो आरबीआई के लिए मैं कहूँगा गोल्डी लॉक सिचुएशन. इससे बेहतर ये ड्रीम रन था कि आप इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर रहे हैं, आप लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं और साथ में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है. इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम आगे भी, जैसे आपने कहा, कि शायद इंटरेस्ट रेट्स और थोड़ा हम कम कर सकते हैं. आरबीआई उसका स्कोप है ये, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, 2% से ऊपर चलेगा, तब भी आरबीआई के कंफर्ट जोन में रहेगा. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर आरबीआई एंड फॉर द कंट्री राइट नाउ. And Puneet, as Subodh just mentioned, that inflation levels were unusually low in the year gone by. What are the expected trends in the coming months? So, Sarbjit, I think inflation will largely remain benign. In fact, RBI has kind of hinted that they would be happier if inflation goes above 2% a little bit. So, the tolerance band is, like Ayush said, between 2% and 6%. And they would be happier if it is closer to 2.5-3%, because that is a comfortable level. One of the reasons why we have seen very low inflation in India is two major items of consumption: crude oil and vegetable prices and food prices. They have remained under control, and these two items are largely affecting the quality of life for weaker segments of society. So I think it is a happy situation where these essential items are cheaper and inflation rate is lower, and therefore I think this RBI confidence that they can lower the rates even further. और अगली खबर है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के तहत 22 नए प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है. इसमें लगभग 41,863 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है. ये स्वीकृतियां 11 टारगेट सेगमेंट उत्पादों के विनिर्माण के लिए दी गई हैं, जिनमें मोबाइल निर्माण, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर शामिल हैं. इन परियोजनाओं से 2,58,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होने और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 34,000 नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माताओं को डिजाइन टीमों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया और कॉमन डिजाइन इकोसिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया. हमारे संवाददाता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना की शुरुआत भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी. इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती उद्योगों में से एक है. यह देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में अहम भूमिका निभा रही है. आज मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स 8 राज्यों से संबंधित हैं: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान. इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई मजबूत होगी, जरूरी कंपोनेंट्स के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत में उन्नत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी. इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 24 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है. ये नई मंजूरी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की सोच का एक अहम कदम है. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली. Puneet, we'd like to know from you, how do you see this as a push to the manufacturing sector as far as Atmanirbhar Bharat concept is concerned? So, Sarbjit, essentially, we've seen government has really prioritized
boosting manufacturing of electronic industry in India. First of all, we used to import a lot of electronic items from abroad, which used to cause a lot of outgo of forex for us, which was the problem. And also, we want to find a place for ourselves for electronic exports from India. I think government's policies vis-a-vis providing incentives in terms of PLI is something which has really been a game changer. Also, government has been emphasizing manufacture of high technology semiconductors in India, which is a critical component, and not many countries in the world. In fact, there are only a handful of countries that are capable of producing semiconductors within their borders. And India, fortunately, is now stepping into that area. And I think government's efforts in this direction have been very, very fruitful. All right, listeners, let's see how the forex reserves are now looking up. India's foreign exchange reserves edged up by $3.29 billion to $696.6 billion for the week ending on 26th of December. Gold reserves rose over $2.9 billion to $113.3 billion. Foreign currency assets, which form the largest component of the reserves, increased by $184 million to over $559.6 billion during the week, influenced by fluctuations in currencies such as the euro, pound and yen. Central Bank's position in the International Monetary Fund also advanced by $93 million to $4.87 billion, and special drawing rights added $60 million to $18.80 billion. The government has debunked a social media account claiming that the Reserve Bank of India will discontinue the circulation of 500 rupees notes by March this year. The fact-check unit of the Press Information Bureau has said that the claim is fake and no such announcement was made by RBI. The unit also said that 500 rupee notes is still legal tender. Global crude oil prices slipped today. Brent crude was trading over 0.3% down at $60.64 per barrel, and WTI crude was trading 0.3% down at $57.24 per barrel when reports last came in. Meanwhile, investors weighed oversupply concerns against geopolitical risks, including the war in Russia and Ukraine and Venezuela exports. जी हाँ, वेनेजुएला के अलावा भी ईरान की भी खबरें आ रही है सरबजीत. अभी अगर हम देखें तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अगर देखें तो उथल पुथल तो कई जगह है. लेकिन बहुत मज़ेदार है पुनीत ये कि अभी हम देख रहे हैं कमोडिटीज़ में भी तेज़ी है. सोना चांदी भी चमक रहा है, शेयर मार्केट भी चमक रहा है. मतलब ये अनोखा एक मेल दिखाई दे रहा है जो आमतौर पर सब एक दूसरे के उलट चल रहे होते हैं. बिल्कुल सुबोध, आपने सही कहा. नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट्स में एक मल्टी एसेट्स, अलग अलग एसेट्स जो है वो अलग डायरेक्शंस लेती हैं. लेकिन अगेन ये बहुत रेयर होता है, कभी कभार होता है ऐसा कि मार्केट, सभी एसेट मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में चले. और सिर्फ एक मार्केट है जिसमें कि इस वक्त मंदी चल रही है, वो क्रिप्टो की मार्केट है. क्योंकि बिटकॉइन का जो दाम है वो काफ़ी गिरा है पिछले कई महीनों में, 2-3 महीनों में करीब 33% उसमें फॉल आया है और वो अभी कमजोरी के दौर में चल रहा है. तो मुझे लगता है कि कुछ पैसा जो इन्वेस्टेड था क्रिप्टोज में या ऐसी एसेट्स में वो डाइवर्ट हुआ है. और कमोडिटीज़ में खासतौर से मेटल्स में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक तेज़ी बनी है. वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट जारी है. काफ़ी स्पेकुलेटिव बबल भी आप कह सकते हैं, खासतौर से सिल्वर में, चांदी में, गोल्ड में. पर और कॉपर आप जानते हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है. तो डेफिनेटली एक चेज कर रहे हैं जी. और अगर सिल्वर की बात कर रहे हैं जो अभी तक दिखाई दे रहा है, जो चांदी की हालत है, जो तेज़ी दिखाई दे रही है, जितनी चमक दिखाई दे रही है, और इसके बाद अभी जो कुछ दिन पहले चीन से खबर आई थी कि उसने पूरी तरह से एक्सपोर्ट पे उसके रोक लगा दी है, तो दुनिया में फिर सप्लाई अगर टाइट होगी तो लगता है कि उसका असर और दिखाई देगा फिर. जी हाँ, बिल्कुल. अभी तो चांदी को लेकर काफ़ी चिंताएं भी हैं, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल यूज में काफ़ी यूज होती है और उसका जिस तरह से दाम बढ़े हैं, डेफिनेटली उसका इन्फ्लेशन पर, ग्लोबल इन्फ्लेशन का असर आएगा. पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको याद होगा 1982 में काफ़ी बड़ा हंट ब्रदर्स का जो एक बहुत बड़ा एक एपिसोड हुआ था और चांदी अचानक 5-7 गुना बढ़ी थी कुछ बहुत शॉर्ट पीरियड में, और उसके बाद क्रैश आ गया था बहुत बड़ा. तो मुझे लगता है कि बहुत स्पेकुलेटिव बबल अगर होगा तो किसी भी एसेट में, चाहे चांदी हो चाहे सोना हो, उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. मुझे ये लगता है कि शायद उस चमक से, जैसे आप बात कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट होकर उसमें स्पेकुलेटिव पार्टिसिपेशन न करें.
जी, और जैसा अभी हम पहले भी हम अभी बात कर रहे थे कि जो कमोडिटीज और इक्विटीज का जो उल्टा जो रिश्ता है वो अनोखे ढंग से अभी एक तरफ ही दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं, दोनों में तेजी दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे कोई आप कुछ सूक्ष्म कारण बताना चाहेंगे क्या? देखिए सुबोध, इसके पीछे एक ही मुख्य कारण है, वो लिक्विडिटी है। अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पैसा तो वही क्रिप्टो का है या वो और कुछ है? वो चाहे क्रिप्टो, आप क्रिप्टो से कह सकते हैं, या जो इवन अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट कट करके लिक्विडिटी बढ़ाई डाली जी, है जी। वो भी पूरा एसेट्स को चेज करती है। और हम देखते हैं, आपने जो जिक्र किया, हमने ऐसा है कि कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट नॉर्मली एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में चलती है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि वो एकदम तेजी से एक ही डायरेक्शन में चलती है, पर ये बहुत दिन रहता नहीं है। और ये देखने वाली चीज है कि पहले कौन इसमें से पीछे हटेगा, इक्विटीज पीछे हटती हैं या इसमें कमोडिटीज आखिर कब तक? And let's see how the gold and silver figures are showing up in the Indian bullion market. The 24-carat gold was trading almost 0.9% up at 1,37,330 rupees per 10 grams, whereas silver was trading over 2.5% up at 2,41,970 rupees per kilogram a short while ago. जी, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक फरवरी अनुबंध वाला सोना लगभग 0.8% बढ़कर 1,36,908 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी लगभग 3% बढ़कर 2,42,613 रुपये प्रति किलो पर थी। Puneet, these two precious metals, gold and silver, is their shine here to stay? So, Sarabjit, definitely I think the long term, these metals will continue to hold value. They will appreciate in the long term. Short term, I don't know, because there may be speculative bubble there, particularly in silver, because and also globally, the commodities exchange in the US, in London, LME, the London Metal Exchange, and even in India, to curb this speculation, exchanges actually increase the margins to 3 times, to about 33% of the trade. So I think going forward, we will see some decline in the kind of volumes, in the kind of speculative activity which is there, which could cool the prices a little bit in the short term. So there may be a bit of a correction, but I think long term, they seem to be good for you. So is this correction expected to affect the consumption levels of these metals? In fact, it will affect it positively, because what has happened is that because the prices have shot up so much, we find that manufacturers are finding it difficult to incorporate it into their items. They are not able to procure enough quantities for manufacturing, because silver is used in electronics, it is used in automobiles, in many applications. So manufacturers are reporting that they are finding difficulties in procuring silver. And like Subodh ji said earlier, China has put a lot of curbs on exports of silver, and China is the largest manufacturer and exporter of silver in the world. So the supply chain is a bit disrupted right now. Prices have come down. I think it will help manufacturers a lot. तो वही देखना है सरबजीत कि अब आगे सोने और चांदी की रफ्तार क्या रहती है, कैसे सब कुछ आगे बढ़ता है, और इससे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इस पर। लेकिन पुनीत, अगर हम गौर करें तो इसके अलावा भी, जैसे अभी कहा जा रहा है, अब कॉपर की बात आ रही है कि अब कॉपर भी भाई चांदी की तरह आ जाओ, तो क्या आम लोग चांदी की तरह कॉपर में भी ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज कुछ एक्सचेंजेस में, पर्टिकुलरली इंडिया में MCX पे या NCDX पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और ऑलरेडी कॉपर का जो दाम है बहुत बढ़ा है, लाइफ टाइम हाई पर भी है, ट्रेडिंग हो सकती है, इसमें लोग कर भी रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज नहीं है आम इन्वेस्टर की। तो मुझे लगता है इसके अंदर एक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को इसमें ट्रेड करना चाहिए। जी पुनीत, कार्यक्रम में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध जी। Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. New Year cheer grips Indian stock markets. Sensex and Nifty scaled to new closing peaks. Among major Asian indices, South Korea's Kospi ends at all-time high closing level. And in Indian bullion market, gold and silver prices edge higher. And that's it in the edition of Market Mantra for today. See you tomorrow. Goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra.